पण माझा आवाज चालला, मी काय बंद करू यातलं? कॅमेरा तर बंद आहे माझा. पण ऑडिओ ओनली मोड. पण माझी तर कसं लिहून येते ना, कल्याणी शालिनी स्पीकिंग, शालिनी वाटाणे स्पीकिंग असं लिहून येते खाली. थांब एक मिनिट करायची. हॅलो कल्याणी, कल्याणी ते माझं येतच आहे, मी स्पीकिंग करत आहे असं खाली येत आहे. काय म्यूट करू पण मी? कॅमेरा बंद आहे. हो.
Hello, I, Captain Mithilesh, extend to you a very warm welcome on behalf of Vidyabharati Mahavidyalaya, who has clubbed all of us for the webinar on new education policy. I welcome Honorable Principal Dr. Pradnya Enkar, Colonel Ganesh Upadhyay, Commanding Officer 4 Maharaj Girls Battalion NCC Amravati, Major Lovi Sharma, Administrative Officer 4 Maharaj Girls Battalion NCC Amravati, Caretaker Amit Ingole, Colonel Singh, Free Signal Company NCC Amravati, all ANOs, faculty members and cadets. आज हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर वेबिनार लेने जा रहे हैं। इसकी क्या जरूरत है? हम जानते हैं कि जिस तरह रुका हुआ पानी बदबू मारने लगता है, उसी तरह पुरानी जो पद्धति है हमारी शिक्षा की,
उससे आज जो बच्चे हमारे शिक्षा का लाभ ले रहे हैं वो कम मिल रहा है। यही कारण है कि भारत में समय समय पर शिक्षा जाता रहा है। भारत में पहली शिक्षा नीति पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1968 में शुरू की थी। के बाद अगली नीति राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में दूसरी शिक्षा नीति बनाई थी और जिस 1992 में नरसिम्हा राव सरकार ने कुछ बदलाव। वर्तमान भारत में 34 साल पुरानी शिक्षा नीति चली आ रही है और जैसे बदलता है वैसे वैसे हर नीति में बदलाव आना जरूरी होता है, अदरवाइज वो प्रभावहीन होती जाती है। यही कारण है कि वर्ष 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार कर जनता से सलाह मांगी और शिक्षा मंत्रालय ने नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 घोषित किया जाना देशवासियों के लिए एक योग्य कदम है। तो मैं आपका बहुत समय न लेते हुए I would like to request today's speaker, Dr. Madam, to please enlighten us on new education policy. It's my duty to introduce her. Now, Dr. Padmakar has 25 years of teaching experience and about 2 years of administrative experience. Under her able guidance, 3 students awarded PhD, 3 are still working. She has published more than 20 research papers in international and national journals. Also, she published 3 books. Under her leadership, Institute has ISO certification, Mentor College under Paramarsh scheme, and 3rd cycle of NAAC evaluation. She also completed 1 major research project. She has dynamic personality, excellence in administration. I request Anchor Madam to please guide us on new education policy. ये हम टीचर्स के लिए न्यू जानना जितना जरूरी है, आवश्यक उतना ही जरूरी आप कैडेट्स के लिए, आप स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आप अभी शिक्षा ले रहे हैं तो आपके लिए ये मार्गदर्शन बहुत ही उपयोगी होगा। So I request ma'am to please. Shall I shift over there? इधर Am I audible? Is it fine now? All right. All right. Thank you, Captain Maurya, Madam. Good afternoon, one and all. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everybody. Very warm welcome to all of you. Good afternoon. First of all, I extend my gratitude for Maharashtrian Girls NCC Unit as well as Vidya Bharati NCC Unit for giving me this opportunity to discuss the topic National Education Policy 2020. Right at the outset, let me tell you that Mahatma Gandhi has rightly said that any change in any country can be possible, can be brought in only and only through education. As you that with the changing time, change in education is also very much required. It is a must. Rather, change is the fundamental feature of nature. So, हम किसी भी चीज को एक ही जगह काफी समय तक नहीं रख सकते हैं। आपको तो पता ही है
last 3-4 decades, lots of changes are taking place not only at national but international level also. यही सारी चीजें ध्यान में रखते हुए as madam has already told you कि changes have been brought in the education system, लेकिन अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी गए 2-3 साल से लगातार इस पर काम चल रहा था, अभी भी चल ही रहा है, और बड़े बहुत सारी उसके ऊपर एक्सरसाइज करने के बाद मुझे यहाँ बताना जरूरी है कि ये जो भी चेंजेस आए हैं, ये बदलाव आए हैं, ये किसी वित्त नहीं आए हैं, इसके लिए सारे परिश्रम किए गए हैं, कमिटी स्थापन हुई थी, सारे मेंबर्स, कई सारे विद्या विभूषित लोग बैठकर उनकी चर्चाएं हुई, उनके एक्सपेरिमेंट्स हुए, उनके डिस्कशंस हुए, और उसके बाद इस नतीजे पर आ गए हैं कि अभी 2020 में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इट्स टाइम फॉर अस टू ब्रिंग इन चेंजेस इन एजुकेशन सिस्टम। यह होना बहुत जरूरी है कि ये एजुकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट करने के पहले सिर्फ जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में बैठे हुए जो एजुकेटर्स है, स्कॉलर्स है, सिर्फ उनकी ही राय नहीं ली गई, बल्कि छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में, पंचायत से लेके उनके सुझाव बुलाए गए, उनके सुझाव मंगाए गए, एक्चुअल रिक्वायरमेंट टाइम क्या है, ये सारी चीजें देखी गई, और उसके बाद चल के ये एजुकेशन पॉलिसी का निर्माण हुआ है। इसमें अभी भी इट्स एन ऑल इंक्लूसिव पॉलिसी जिसमें हर चीज का ध्यान लिया गया है। वेल, बिफोर आई प्रोसीड विद ये पॉलिसी क्या है, कैसी है, ये चेंजेस आने वाले हैं, वो होने वाले हैं, उसको मैं वो बताने के पहले या वो डिस्कस करने के पहले मुझे यहाँ बताना बहुत जरूरी है कि कल जब ऑल ऑफ अ सडन आई वाज टोल्ड कि आई हैव टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक, और जब मैंने सर्फिंग और जब मैंने इसके ऊपर जरा गौर से मैंने जब पढ़ाई, ऑफ कोर्स बीइंग अ टीचर naturally I have to update it with all the new information, all the teachers, लेकिन लकीली मुझे ये जो कमिटी स्थापन हुई थी, इसके जो चेयरपर्सन है डॉक्टर कुमारस्वामी कस्तूरीरंगन, इन्होंने जिस दिन ये पॉलिसी सरकार को हवाला किया, सरकार को दिया, उन्होंने जो प्रेस नोट जारी की थी, उस प्रेस नोट का एक जिस्ट में सबसे पहले आपके सामने बताना चाहती हूँ, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक अ घोषवारा कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। प्लीज बेयर विथ मी। ये एक मराठी का डॉक्यूमेंट है, सो आई बी I'll be telling you in Marathi. Bear with me. शिक्षण धोरणाचा अर्थात NEP 2020 10 वर्षांचा अजेंडा आहे, यानी साधारण ये 10 साल लगने चाहिए इसको इम्प्लिमेंट और एक्झिक्युशन करने के लिए। हे धोरण अशा प्रकारे तयार केले आहे की आगामी 5 वर्षात त्याची बहुतेक उद्दिष्टे साध्य करता येतील। उसके जो भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है वो आने वाले 5 साल में दिखेंगे। क्योंकि ये वो ऑल ऑफ अ सडन या विद इन अ नाइट नहीं हुआ, बट एफर्ट्स आर बीइंग टेकन बाय ऑल दीज मेंबर्स। संशोधन संस्था तैयार करने, व्हाट इज द नीव, उसकी सबसे बड़ी महत्व क्या है, अहमियत क्या है? तो सबसे पहले तो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हमको हमारे देश में बढ़ानी है। शाळांची रचना बदलने, यानी जो भी स्कूलिंग का जो पैटर्न है वो भी उसमें चेंज लाना है, या इम्पॉर्टंट उद्दिष्टे साध्य केली जाऊ शकतात। नवीन संस्था तयार करणे, तंत्रज्ञान सुधारणे, येस, टेक्नॉलॉजिकल रिफॉर्मेशंस, पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसमें भी मॉडर्नाइजेशन, डिजिटलायझेशन लाना, शिक्षकांचे प्रशिक्षण यासारखा उर्वरित दीर्घकालीन उद्दिष्टांना 10 वर्ष लागू शकतात। यानी इसमें इसको अपेक्षित तो है कि 2030 तक सारा काम हो जाना चाहिए, और सारे जो रिसोर्सेज हमने जुड़ाई है इसमें सारा काम होना चाहिए। लेकिन
वैसे देखा जाए तो इसका इम्प्लीमेंटेशन मोस्ट प्रोबेबली 2022 यानी आने वाले इन 1-2 साल में ही होने वाला है। राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड़ा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसके तहत ऑल ओवर द इंडिया भारत का ऊंचा जो करिकुलम फ्रेम होगा वो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। वो आज बट इट इज लेस इन चल के उसका परसेंटेज ज्यादा होगा और वो इट्स गोइंग टू बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। होता क्या है कि कुछ बदलाव 1-2-3 जगह आते हैं लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज में और या बाकी स्टेट्स में उसका इम्प्लिमेंटेशन उसी समय नहीं होता है। फिर काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याची रूपरेषा राज्य सरकारकडे सोपवली जाईल। शालेय अभ्यासक्रम आराखड्यांचे काम 1 वर्षात पूर्ण होईल। त्यानंतर पुस्तकांचे काम सुरू होईल। नॅचरली चेंज लाना है करिकुलम में, यदि फ्रेमवर्क यदि बदल रहा है तो उस हिसाब से हमको बुक्स भी उस तरह से हमको प्रिंट करनी होगी, पब्लिश करनी होगी। आणि हे सर्व उसका ये है उसका जो ये एक्सपेक्टेड टाइम है वो 3 इयर्स होने वाला है। शिक्षक नवीन अभ्यासक्रमासाठी तयार असतील तर ते देखील लवकरच सुरू केले जाईल। यस, जब भी कोई भी जब नया सिलेबस फ्रेम होता है तो बुक्स नहीं आना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी होता है जो टीचर्स वो सिलेबस को पढ़ाने वाले हैं दे शुड ऑल्सो बी रेडी विथ इट, दे शुड ऑल्सो हैव द नॉलेज ऑफ इट, दे शुड ऑल्सो बी अपडेटेड अकॉर्डिंगली। अभ्यासक्रम आराखड्यानंतर ते त्यांच्या राज्यात ते कसे आणि किती लवकर अंमलात आणायचे ते तिथे अकॉर्डिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट के अनुसार वो काम किया जाएगा। उसके बाद सबसे महत्व की चीज पर इसमें इंपॉर्टेंस दिया है और वो है मातृभाषा। कोर्स इट इज स्टिल डिबेटेबल, ये पॉइंट आज भी डिबेटेबल है कि मातृभाषा का शिक्षण कितना इंपॉर्टेंट है। और या वी नो एवरीबडी विल अग्री विथ मी कि जो चीजें हम अपनी मातृभाषा में जितनी इजीली समझ सकते हैं वो चीजें दूसरी भाषा में, फॉरेन लैंग्वेज में, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में वही चीज समझने में हमको दिक्कत आती है क्योंकि हमारे प्रोसेस बेसिकली मातृभाषा में होती है। तेव्हा मातृभाषा में कहाँ तक के और कितना सिखाया जाए ये भी उसके अंडर रिफॉर्मेशन है। फिर शिक्षण धोरणात 3 भाषांबद्दल सांगितलेलं आहे। आई रिमेंबर एज अ स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज, एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, मैंने अपने सिलेबस में पढ़ा है कि इनसे 68 लैंग्वेज पॉलिसी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये की थी, लाइक इट वाज सजेस्टेड बट इट कुड नॉट वर्क, बट दैट वाज आल्सो फॉर अ कंट्री लाइक अस जहां मल्टीलिंग्वालिज्म है, यानी अनेक भाषाओं का यहाँ जो समुच्चय है इसमें किस भाषा को अधिक प्राधान्य दिया जाए हमेशा ही डिबेटेबल रहा है। तो शिक्षण धोरणात 3 भाषांबाबत सांगितले गेले आहे। Of course, considering the participation of all the stakeholders, और आजकल खासकर पेरेंटल जो व्यू है, पेरेंटल जो क्या बोलते हैं शेयरिंग हो रहा है एज अ स्टेक होल्डर, उनका भी पार्टिसिपेशन हमको ध्यान में रखते हुए हमको इंग्लिश और हिंदी भाषा को निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट म्हणजे और इम्पॉर्टेंट उसका उद्दिष्ट है वो यानी रोजगाराभिमुख शिक्षण। बोले तो हम जो भी कुछ पढ़ते हैं उसका हमको व्यवसाय के लिए, हमारी आगे लाइफ में हमको यशस्वी बनने के लिए उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग होना चाहिए। मुलांना शाळेत कौशल्य शिकवण्यासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप यासारख्या व्यवस्था केल्या जातील। यामध्ये शाळेतील पायाभूत सुविधा ही एक शकते, परंतु शाळेतील मुलांना सुद्धा आणि स्थानिक पातळीवर काय काय आपल्याला रिफॉर्मेशन आणता येतील याही गोष्टीकडे खास करून लक्ष दिल्या जाईल। सरकारी शाळांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध आहे का, ये जो कमिटी है कस्तूरी रंगन कमिटी, उन्होंने इस भी चीज पर बहुत ध्यान से गौर किया है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर ध्यान दिया है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ व्हाट यू कॉल एडेड स्कूल्स एंड गवर्नमेंट स्कूल्स। क्योंकि हम जब इतने सारे रिफॉर्मेशन लाने की सोच रहे हैं तो नेचुरली जो जीडीपी होता है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन होता है उसमें से जो खर्चा जो डिवीजन होता है एक्सपेंडिचर में, जो आज तक के 3 का हुआ करता था एजुकेशन पर, वो अभी इन्होंने कस्तूरी रंगन समिति जो सुझाव दिया है इट शुड बी 6%, यानी इट्स अ गुड थिंग। देखिए ये सारे सुझाव दिए गए हैं, अभी गवर्नमेंट
हद तक ये पूरा कर सकता है वी डोंट नो, लेकिन ये बात हमको बाय नाउ वी ऑल हैव अंडरस्टूड कि पर से ज्यादा खर्चा होना जरूरी है, क्योंकि ये खर्चा एक्सपेंडिचर नहीं कहलाएगा, ये तो बहुत बड़ी इन्व्हेस्टमेंट होगी. फिर पुढे शेवटच्या टप्प्यामध्ये कस्तुरी रंजनचा जो रिपोर्ट आहे त्याच्यामधला शेवटचा पॅराग्राफ असा बोलतो की विद्यापीठ स्तरावरील संशोधने केवळ कागदोपत्री आहेत का. येस, अदर पॉइंट रेज्ड बाय दिस कमिटी कि जो भी कुछ आज नेशनल लेवल पर जो भी कुछ रिसर्च चल रहे हैं, जो भी PhD those who are working, तो हाउ फार उसकी यूटिलिटी क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, जो भी रिसर्च चल रहा है वो समाजोपयोगी है या नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल एज्युकेशन हैज टू बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसायटी. तेव्हा संशोधनामुळे केवळ उद्योगांनाच फायदा होईल, सर्वसामान्य आणि समाज हिताचे असावे. म्हणजे जो भी कुछ रिसर्च हो रहा है इट मस्ट पर्क्युलेट टिल द क्या बोलते हैं ऑफ सोसायटी. नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनची स्थापना करण्याची शिफारस केलेली आहे इस आयोग ने. इन्होंने एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन शुरू किया जाए, वो मैं अपने स्लाइड्स में और डिटेल में इन सारी चीजों का डिस्कशन करने वाली हूँ. दिस इज आई एम रीडिंग द जिस्ट ऑफ जो अहवाल जो डॉक्टर कस्तूरी रंजन ने सबमिट किया था, उसका जो प्रेस नोट उन्होंने रिलीज की थी उसके बारे में आपको मैं पहले ही आपका ध्यान देती हूँ. फिर उनका कहना है कि ये फाउंडेशन विद्यापीठांमध्ये संशोधनासाठी आवश्यक संसाधने आणि क्षमता वाढवेल. नवीन शिक्षण धोरणात महाविद्यालयांच्या स्वायत्ततेतले आहे. स्वायत्तता म्हणजे ऑटोनॉमी, यानी महाविद्यालय से है, किस रीजन से है, whether it belongs to any higher education institute, वो कहाँ से है, whether it belongs to an urban place, what you call rural area or metro area, तो वहां से जो शिक्षण दिया जाता है there should be relevance. वो तो क्वालिटेटिव तो होना ही है, गुणवत्ता सर्वोत्तम गुणवत्ताधारी तो होना ही है, लेकिन उसके साथ ही उसका रेलेवेंस यानी उपयोग कितना है. वो जहां से हम वो दिए जा रहे हैं आने वाले जो बच्चे हैं उनकी नीड्स, उनकी गरजे पुरी हो रही या नाही, तेव्हा योग्य विकासासाठी काही स्वायत्तता देणे ही आवश्यक आहे, ऐसा कहना है उनका. याचा अर्थ कोणतेही नियम नसतील असा नाही. महाविद्यालयात शिक्षक पुरेसे आहेत की नाही, त्याचा रिझल्ट काय आहे, शिक्षकांची सुरक्षितता, नॅचरली द सिक्युरिटी टीचर, क्योंकि यू नो द 100% output can be given only when you are getting 100% security. तेव्हा अशा या सगळ्या सार्वजनिक लेखापरीक्षण होईल आणि सार्वजनिक व्यासपीठावर या सगळ्यांची माहिती दिल्या जाईल, अशा प्रकारचा. सो इस तरह का ये जिस्ट बनाया है कस्तूरी रंगन समिति ने. सो एज अ चेयरपर्सन उन्होंने अपने मुद्दे, अपने उद्दिष्ट सभी के सामने रखे हैं. अब आप कैडेट्स जो बताया गया है कि कॉलेज को बिलोंग करते हैं एंड सम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर आल्सो फ्रॉम स्कूल्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपके सामने डेफिनेटली ये प्रश्न चिन्ह आया होगा कि भाई ये सारी चीजें हमको क्यों बताई जा रही है. वो जाने, वो कॉलेज जाने, वो यूजीसी जाने, वो यूनिवर्सिटी जाने, या तो वो जो आयोग जो है वो कमिटी पीपल शुड अंडरस्टैंड एंड डू एंड एग्जीक्यूट अकॉर्डिंगली. लेकिन बच्चों ये ऐसे नहीं है. जब भी कोई आता है उसका काय म्हणता त्याला सर्वांपर्यंत सभी तक वो पहुंचना बहुत जरूरी होता है. अदरवाइज क्या होता है, उसके वो एग्जैक्टली क्या है, यदि हम वो उसको समझ नहीं पाए तो नेचुरली it is not, the work is not properly done. So with this background I would like to go ahead, I would like to proceed with what exactly in short. Okay, let me tell you, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये काफी बड़ा पर्चा है. ये इस तरह का ये एक ये है डॉक्यूमेंट है. इट इज अराउंड 66 पेजेस. ये सारे 66 पेजेस का मैंने जिस्ट एक आपको समझ पाए, आप लोग समझ पाए, इस हिसाब से मैंने करने का प्रयास किया है. सो आई रिक्वेस्ट मिस्टर लुंगे टू प्लीज हेल्प मी आउट टू शेयर द with me, slides with you people. Yeah.
Please go back. First one. Pehli. Yeah. National Education Policy 2020. It was approved by on July 29, 2020 and it has a clear vision. अभी मैंने आपको ये जो प्रेस नोट रिलीज हुआ था उसके बारे में यही है कि उसमें उन्होंने दो तीन चीजों को क्लियरली हमको बताया गया है कि जो भी कुछ चेंजेस आज तक हुए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए आगे जो होना है वो कैसे होगा और वो किस तरह से, वो क्यों है, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये सारी चीजों पर हम अभी शॉर्टली वी विल बी डिस्कसिंग विद इट. तो नेचुरली वी कैन अंडरस्टैंड इंडिया इज सच अ बिग कंट्री. जब भी कोई नई चीज आती है तो उसको अमल करने के लिए, उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन करने के लिए, वो लोगों तक पहुंचने के लिए इट टेक्स टाइम एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी चोज यू स्टूडेंट. And I know some my colleagues are also present here. I can see my colleagues, my friends are also seen here. So naturally now we are the messengers. So it is very necessary for us to understand कि ये भाई क्या है, कैसे है और किस तरह से होने जाने वाला है. ये सारी चीजें हमको समझनी है ताकि हम समाज के हर उस स्तर तक पहुंच सके और उनके मन में जो भी कुछ नेचुरली जब भी कोई नया बदलाव आता है, देखो हमारा हम जब जीते हैं तो हम हर एक कोई अपना एक कंफर्ट जोन बना लेता है और वो जोन में वी आर वेरी हैप्पी. और वो कंफर्ट जोन को यदि कोई इन्वेड करे, कोई उसको हिलाए, दिस इज माय रूम, यदि कोई आता है कि आज से मैं तुम्हारी रूम शेयर करने जा रहा हूं, ऐसे बोले साथी हम लोग एकदम वी गेट अनॉयड कि नहीं दिस इज माय प्लेस, दिस इज माय स्पेस and nobody can invade. तो वैसे ही कुछ होने जा रहा है. तो ये जो चेंज है, ये जो बदलाव है, हमको समझ लेना चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सी दिस इज द स्ट्रक्चर डायग्राम. इसको मैं और विस्तृत तरीके से आपको बताऊंगी आगे वाली स्लाइड्स में. पर आप देख सकते हैं कि यहाँ दो बने हैं. वन इज एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर और दूसरा वाला जो है वो है न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर. नाउ लेट मी मेक वन थिंग वेरी वेरी क्लियर टू यू राइट इन द बिगिनिंग कि ये जो चेंजेस जो आने वाले हैं ये ऑल टुगेदर बहुत सारे चेंजेस नहीं है. राइट, यू विल नोटिस, आपको पता चलेगा कि ये जो चेंजेस है ये जहां जहां लूपहोल्स थे, जहां जहां हमारा नुकसान हो रहा था, सामाजिक शैक्षणिक नुकसान हो रहा था, वो नुकसान को पूरे करने के लिए ये आयोग और ये समिति ने ये सारे सेक्शंस और ये सारे ये दिए गए हैं. ये दो कॉलम्स आप देख सकते हैं कि पहला जो है वो 10+2 प्लस उसके आगे फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड रिसर्च था. अभी जो है वो ब्लॉक डायग्राम में यू कैन सी 3+3+4 और यानी 5 years प्लस 3 years प्लस 3 years प्लस 4 years, फिर आगे का हायर एजुकेशन का इस तरह से होने वाला है. उसको और डिटेल में हम आगे समझ लेंगे. नेक्स्ट प्लीज. Next slide. Yes. What is the vision behind bringing this national education policy? सबसे पहले तो है the country needs an education system that contributes to an equitable and vibrant knowledge society by providing high quality education. यहाँ दो तीन चीजें बहुत जरूरी है. एक तो knowledgeable society, दूसरा है high quality education. Remember, it's not that हमारे यहाँ एजुकेशन के फील्ड में, even though we are a big country having a population of 1.35 crores now, but still we are striving to reach to the bottom, top to the bottom. तो में जरूरी है हमको उसमें इम्प्रूवमेंट जरूरी, एंड हेंस हाई क्वालिटी एजुकेशन. और इस सेंटेंस का सबसे लास्ट वाला जो वर्ड है दैट इम्पोर्टेंट, और वो है ऑल, सभी, सर्वसमावेशक, सभी को इस चीज का बेनिफिट मिलना जरूरी है. सेकेंड विजन है इट डेवलप्स अ डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द फंडामेंटल राइट्स. अब आपको देखो कितना स्विच ओवर हो रहा है. अब तक तो हम कैसे चल रहा है, 10वीं फिर बोर्ड एग्जाम, 12वीं फिर बोर्ड एग्जाम. हाय घर में तो बोर्ड एग्जाम है तो सारा घर में कर्फ्यू लग जाता है.
राइट। बच्चा तो 10वीं में एक बार, 10वीं नहीं, वो 8वीं 9वीं में ही आ जाए तो घर का एटमॉस्फेयर एकदम एकेडमिक जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी वेरी कॉमन सिनारियो विच वी एक्सपीरियंस इन एवरी हाउस इंक्लूडिंग माइन। यस, आई शुड नॉट, आई एम ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शन। ओके, तो सारा एटमॉस्फेयर इतना स्टडी फोकस्ड हो जाता है, सब लोग उस वो बच्चे पर बेचारे उसके आ जाते हैं। 10वीं है, एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, फिर भी घूम रहे हो, फिर रहे हो, क्या खेल रहे हो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सो ये जो 10वीं फिर 12वीं फिर ये, यानी ये जो एक रूटीन और विद इन द फ्रेमवर्क जो चल रहा था, और इसमें हम इतने एग्जाम ओरिएंटेड हो रहे थे, हम इतने ये टेस्ट, वो क्या बोलते हैं, ये इंजीनियरिंग का एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका एलिजिबिलिटी, इतना हम कंसंट्रेट कर रहे थे कि हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है वो भी हम भूल चुके थे। हमारे एथिक्स, हमारा कल्चर, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे जो हमारी एक धरोहर है, हमारी इतने सालों पुरानी जो गोल्डन ट्रेडिशन है, उसको भी हम भूल गए थे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वी आर अ कंट्री, इसमें तो अभी हमको याद आया है कि नहीं, एजुकेशन डज नॉट ओनली मीन गिविंग एग्जाम्स एंड गेटिंग सर्टिफिकेट्स। एजुकेशन मीन्स टू यू अ, क्या बोलते हैं, सुसंस्कृत आदमी बनाना है, और उसके जरूरी है हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट है। इसीलिए इस पॉलिसी के तहत हम देखा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, बॉन्डिंग विथ वंस कंट्री, यानी स्वाभिमान, my commitment towards my country, and a conscious awareness of one's role and responsibilities in a changing world. In short, हमारे आजू बाजू में जो हो रहा है वो भी सारी चीजें हमें अभी इस एजुकेशन सिस्टम में लानी है। Third vision is it instills skills, values and dispositions that support responsible commitment to human rights. सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो चल रही है, नो डाउट, डेफिनेटली वी आर डेवलपिंग, लेकिन वो डेवलपमेंट हैज टू बी सस्टेनेबल इन ऑर्डर टू, और उससे भी ज्यादा, वी आर नो मोर अ सिटीजन ऑफ अ स्मॉल ऑफ अ कंट्री, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर अ पार्ट ऑफ दिस ग्लोब, वसुदेवम कुटुंबकम। ओके, अब ये सारी चीजें हमारे लिए नई नहीं है, these are not new things, this had always been a part of our education, part of our culture, part of our tradition, पर कहीं भूल गए थे हम, कहीं पीछे छूट गए। ये जो क्या बोलते हैं, कट थ्रोट कंपटीशन जो मूल्याधिष्ठित है, बेस्ड एजुकेशन है, वो कहीं मिसिंग था, और यही ट्राई, और यही हम इसमें सुझाव किया गया इस पॉलिसी में, एंड दिस विल बी इंक्लूडेड इन आवर बोथ स्कूल लेवल एजुकेशन एज वेल एज हायर लेवल एजुकेशन। So these are the visions of the NEP, National Education Policy. Next, please. Now, key principles. I'm sorry. What are the key principles? क्या तत्व है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आगे लेने के लिए हमको खुद को क्या करना है? तो रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट इन ऑल करिकुलम, पेडागोजी एंड पॉलिसी। देखो, एक तरफ तो हमको ग्लोकल होना है, यानी ग्लोबल चीजें भी ध्यान में रखनी है, लोकल चीजें भी हमको, लोकल जो भी है वैल्यूज है वो भी ध्यान में रखना है, लेकिन ये सब करते समय उसका एक सुवर्ण मध्य हमको आना चाहिए। एज द कॉर्नरस्टोन, फिर community participation, encouragement and facilitation for philanthropic, private and community participation। इसका मतलब है कहीं तो too much of education, too much of bookish knowledge जो चल रहा है, उसमें societal inculcation, फिर community का भी उसमें समावेश होना चाहिए। आगे का प्रिंसिपल है कि की प्रिंसिपल है use of technology। Now remember my dear students, since last 7 months, वो क्या mid March का वो दिन आया और सारा क्या बोलते तहस नहस हो गया। हमारी लाइफ तो कितनी स्मूथली चल रही थी, स्कूल, कॉलेज, एग्जाम्स, प्रैक्टिकल्स, हमारा रूटीन, लेकिन एक कोविड-19
नाम का एक वो कोरोना वायरस आ गया और हम सारे सीज स्टिल लाइफ जहां का तहां रह गया। 2-3 महीने तो पूरा लॉकडाउन में चला गया। फिर धीरे धीरे हम वो स्नेल रहती ना गोगल गाय की, थोड़े थोड़े हम हाथ पांव अभी बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन वो आई होप यू नो द स्नेल, गोगल गाय कहते हैं, वो भी बेचारी धीरे 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 बाहर निकलती है, उसको देखती है वो सुरक्षित है या नहीं। उस तरह से हमारा भी चल रहा है। हमको भी बाय नाउ 6-7 months वी ऑल्सो रियलाइज दैट अरे घर में बैठ के और खुद को एक रूम में इनक्लोज करके ये कोरोना वायरस नहीं जाने वाला है। नाउ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस हैव प्रिपेयर्ड मेंटली आवरसेल्व्स कि भाई है तो हमको ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी दिक्कतें और मेडिकल ये जो चैलेंजेस है, ये सभी को साथ लेते हुए ही जीना है। अब नेचुरली जीना है, जब जीते हैं तो उसमें का एक बहुत आज के डेट में इंपॉर्टेंट जो फैसेट है, इंपॉर्टेंट अंग है, और वो यानी एजुकेशन। आपने देखा होगा कि हाउ दिस टेक्नोलॉजी हैज brought us together once again. फिजिकली आज हम नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन आई टेल यू आई फील वेरी प्राउड कि हमारे कॉलेज में अप्रैल एंड से लेके एवरी डे हम इस या उस बहाने, कभी वर्कशॉप के बहाने, कभी कॉन्फ्रेंस के बहाने, हम अपने बच्चों के साथ, हम हमारे कोलीग्स के साथ, हम हमारे एजुकेशनिस्ट के साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एंड दैट हैज बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। और यही ध्यान में रखते हुए पॉलिसी में भी, ये इस एजुकेशन पॉलिसी में भी इंपॉर्टेंस दिया गया है एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजिकल जो भी रिफॉर्मेशन है। अभी एजुकेशन में, आई मीन प्लानिंग में और मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू प्ले, आई मीन इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें हमको ये जो भी करना है वो टेक्नोलॉजी के सहारे ही करना है। मुझे याद है मैं जब एज अ चाइल्ड, मैं जब सुनती थी कहीं से न्यूज़पेपर से या कहीं मेरे रिलेटिव्स के माध्यम से सुनती थी, फॉरेन में ना बच्चों को कॉलेज में नहीं जाना होता है, बच्चा घर में बैठ के ही, टीचर कहीं और रहता है, सिंगापुर में बैठा होता है और वो यूएस में बैठा बच्चा, उसको असाइनमेंट दिया जाता है, 15 डेज का असाइनमेंट पीरियड होता है, वो सबमिट करता है। एज अ स्टूडेंट आई यूज्ड टू वंडर ये जो बोलने वाला है, दो चीजें हो सकती है, एक तो उसका खिसक गया है दिमाग, कैसे मेरे लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं था, ये पॉसिबल one part of country, the student is sitting in another part of country, and how can they not only teach but also evaluation है, एग्जाम भी चलती है, रिजल्ट्स भी आते हैं। Now see, technology has opened my eyes and today we are actually living and experiencing those circumstances. तो emphasize, हाँ आगे का प्रिंसिपल महत्व का है वो यानी emphasize on conceptual understanding, concept, हर चीज का बहुत सारा क्या बोलते हैं पैरेटिंग चल रहा है। 10वीं 12वीं मोस्ट ऑफ द ये जो ब्रिलियंट रहते हैं बच्चे, कई प्रकार के हम ये रहता है, इंटेलिजेंस के जो ये होते हैं विभाग कई प्रकार के होते हैं, लेवल्स होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं टीचर जब पढ़ाती है फटाफट दिमाग में चला जाता है, और भी पूछो वो अच्छा जो पढ़ रहा है लेकिन उसको तो ध्यान में ही नहीं आता है, लेकिन वो जो है इंटेलिजेंट पर्सन वो कहता है अरे टटका है, उसमें क्या बड़ी बात है, ये तो पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट 2 है, पॉइंट नंबर 3 है। यानी उस बच्चे ने बुक भी हाथ में नहीं ली है बट स्टिल ही इज एबल टू डू, whereas we have another type of students who are slogging, who are mugging and कितना सारा पैरेटिंग चल रहा है, फिर भी ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन क्या हाल होता है, पेट में कितनी बटरफ्लाईज घूमती है, क्या क्या होता है उन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ के जो एग्जाम्स, ऑल द एनुअल एग्जाम्स आर कंडक्टेड इन द समर वेकेशन, समर पीरियड में, नॉट वेकेशन, और वैसे ही तो बहुत तेज धूप होती है, फिर उसमें क्या होता है मुझे बोलने की जरूरत नहीं, यू ऑल माइट हैव एक्सपीरियंस्ड इट इन योर हाउसेस। ओके, इसलिए ये सब क्यों होता है, कहीं तो साइकोलॉजिकल, बच्चों की साइकोलॉजी का भी यहाँ ध्यान दिया गया है, उसके ऊपर भी पढ़ाई हुई है, और हेंस एम्फसाइज इज गिवन ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। फिर यूनिक कैपेबिलिटीज रिकॉग्निशन, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स, हर बच्चा, हर एक व्यक्ति एक पर्सनालिटी है, एक व्यक्तिमत्व है, वो व्यक्ति नहीं है, वो एक व्यक्तिमत्व है, और यही चीज हमको शुरू से ध्यान में रखते हुए, हर बच्चे में कुछ पोटेंशियल है। नाउ हियर पॉलिसी के तहत दिस जॉब
I mean, ये जो टास्क है, नॉट अ जॉब, इट्स अ टास्क गिवन टू द टीचर्स। टीचर ने ढूंढना है कि कौन सा बच्चा किस लिए लायक है, किस लिए अच्छा है। सो द टास्क इज गिवन टू द टीचर। फिर क्रिटिकल थिंकिंग, या मैं इन सारी पॉइंट्स में डिटेल में अभी और आगे आने वाली हूं। फिर कंटिन्यूअस रिव्यू बेस्ड सस्टेन रिसर्च, या रिसर्च एंड रेगुलर असेसमेंट, इस तरह के चेंजेस हम लाते हैं एजुकेशन सिस्टम में। एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस में, इवैल्यूएशन प्रोसेस यानी आपके एग्जाम सिस्टम में इस तरह के यदि चेंजेस आते हैं तो एजुकेशन सिस्टम ओवरऑल कैन बिकम नॉट ओनली informative but more enjoyable. I remember I had one teacher in my college days. You know, she used to एकदम casually बोलती थी, what are you doing? Hey guys, enjoy your studies. मुझे तो कभी समझ में नहीं आया कि how can the teacher says कि enjoy, क्या study भी enjoy करने वाली चीज है? My dear students, my dear participants, yes, इसके तहत I'm sure studies can चेंज जो आ रहा है, बदलाव जो आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है कि ये जो भी कुछ प्रोसेस है, वो इतने जो घुटन हो रही है, जो कहीं सारे क्या बोलते हैं, ये सारे विंडोज बंद करके हम चल रहे हैं, वो सारे खुल के हमको पढ़ाई नाम का जो एक प्रकार का पढ़ाई का बोलते हैं, कुछ बोलते हैं कि सारे बच्चे एकदम हाथ बांध के सीरियस हो जाते हैं, वो ऐसा ना हो। एंड दे शुड ऑल्सो बी एबल टू एंजॉय ऑल दिस। सो नेक्स्ट प्लीज। या दैट इज प्रोविजंस। क्या क्या प्रोविजन की गई है? सबसे बेहतरीन प्रोविजन ये हुई है कि जो आज तक के खर्चा जो चल रहा था उसके ऊपर जो दिया गया था 3%, इट इज इंक्रीज टू 6%। और आज से अभी से लेट अस ऑल प्रे एंड होप कि ये जो जीडीपी इंक्रीज जीडीपी है, ये कोरोना का ये जो भी चल रहा है, याला मराठीमध्ये सावट म्हणतात, हे सावट लवकर संपो आणि लाइफ शुड कम बैक टू, और हम इकोनॉमी का जीडीपी बढ़े ताकि एजुकेशन पर उसका जो हिस्सा हमें एक्सपेक्टेड है। देखिए, वंस अगेन आई विल रिपीट कि इट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर बट इट इज अ काइंड ऑफ अ वेरी यूजफुल इन्वेस्टमेंट टू बी डन बाय एनी कंट्री। तो यहाँ लैंग्वेज के ऊपर इंपॉर्टेंस दिया है। फिर री एंट्री, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट इसका ये है फीचर है कि री एंट्री, वो री एंट्री कैसे है आगे बताऊंगी मैं आपको। फिर वैल्यू एजुकेशन, इंपॉर्टेंस इज गिवन वंस अगेन एज आई टोल्ड यू कि वैल्यू एजुकेशन पर इंपॉर्टेंस दिया गया है। और इवैल्यूएशन जो ओवरऑल होगा वो इट विल नॉट बी ओनली फॉर क्या बोलते हैं एग्जाम, फाइनल एग्जाम दिए और इतना परसेंटेज है, नो, इट विल बी कंटिन्यूअस असेसमेंट। और काफी हद तक हमने ये सारी चीजें शुरू भी की है आज यूनिवर्सिटी लेवल पर, इवन एट स्कूल लेवल ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट इज ensuring universal access to education at all levels. See, once again I tell you कि we have to become not global but glocal, global as well as local. In order to sustain in this cutthroat competition, जहां की सारा सिनारियो बदल गया है, as madam has already told us कि काफी सारे चेंजेस आए, पॉलिसीज बनी, बहुत ज्यादा सुधारणा नहीं हुई। अभी तो काफी बड़ा गैप गया, 34 इयर्स का गैप गया, उसके बाद ये सब चीजें हुई। लेकिन मुझे याद है 1990 ये साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी, एंड देयर वाज नो वे आउट, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जाके घडामोडी झाल्या होत्या। उसके तहत एलपीजी, इसका मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन यानी जागतिकीकरण। इसके तहत कंपटीशन सिर्फ हमारे इसमें नहीं है, इस स्टेट और उस स्टेट के बीच में नहीं है, कंपटीशन इज बिटवीन वी द कंट्री एंड द वर्ल्ड। और हेंस नाउ इन दिस पॉलिसी प्रोविजन इज बीइंग मेड, प्रोविजन हैज बीन मेड कि हमारा बच्चा सिर्फ नेशनल लेवल पर ही नहीं तो इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंड कर सके, कंपीट कर सके। यहां पर मल्टीपल पाथवेज, बिल्डिंग ऑफ न्यू स्कूल्स, लर्निंग आउटकम्स, फिर ब्रिंग बैक ड्रॉप आउट। मैं इस पॉइंट पर आगे भी आऊंगी कि ये जो ड्रॉप आउट जो हो रहा है, इतने बड़े परसेंटेज पर जो आज तक ड्रॉप आउट हुआ था, ड्रॉप आउट इसका सिंपल अर्थ है बच्चा एनरोल करता है, चाहे वो स्कूल लेवल में लेवल पे करे या हायर एजुकेशन लेवल पे करे, कॉलेज लेवल पे करे। कई बार ऐसा होता है बच्चा
आता है, एडमिशन लेता है, बट घर में सर्कमस्टेंसेस होते हैं फॉर्चुनेट कि he cannot continue his studies. He has to give the study in between. He has to give up his studies in between. मुझे याद है मैं एज अ टीचर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि तू पहले हुआ, फिर सेकेंड नैक हुआ, अभी हम तीसरे बार नैक इस एक्रीडिटेशन प्रोसेस के लिए जा रहे हैं. What we have noted कि पहला जब नैक हुआ था उस समय ड्रॉप आउट रेशियो बहुत बड़ा हुआ करता था. There was a big gap. फर्स्ट ईयर एंट्री लेवल में एंटर किए हुए बच्चे एंड फाइनल ईयर पर जब वो एग्जाम देने आते हैं, उनका जो परसेंटेज है उसमें कई बार तो 50% तक का रेशो हमको दिखाई दिया है. यानी अराउंड 50% बच्चे बीए फाइनल में, बीएससी फाइनल में एंटर तो हो लिए, लेकिन दे कुड नॉट कंटिन्यू टिल द एंड, टिल द थर्ड ईयर. ये क्यों हो रहा है, यहां मुझे बताना जरूरी है कि ये पॉलिसी के तहत इस चीज का भी ध्यान दिया गया, इस ऊपर भी पढ़ाई क्या बोलते फोकस किया गया और इसके ऊपर ऑल्टरनेटिव किए गए हैं. वो दैट वी विल सी नाउ. नेक्स्ट प्लीज. नाउ वी विल मूव ऑन टू द स्ट्रक्चरल चेंजेस. में शुरू में मैंने जो ब्लॉक डायग्राम दिखाई थी उसको थोड़ा हम और अधिक सरलता से, और वो मैंने कहा गया कि ये क्या है, ये 10+2 क्या है, ये कैसे चेंजेस है, इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहूंगी. या आज तक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्क कर रही थी. जो भी चेंजेस आ रहे थे दे फ्रॉम MHRD, लेकिन अभी इसके बाद ये MHRD it will change into Ministry of Education, जिसे शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा. As it is already told कि up to now, यानी 2020 तक के हमारा जो स्कीम चल रही थी वो यही थी, वो थी 10+2+3 यानी अंडर ग्रेजुएशन जिस लेवल कहते हैं, +2, और जो लोग उससे भी आगे जाते हैं, उसके आगे जाके जो रिसर्च करते हैं वो है 4 years 5 years. So this was the general trend. कौन सा 10+2+3+2+4. Alright, ये this was up till now ये जनरल ट्रेंड था. लेकिन इसके आगे अभी जब से ये जो ये पॉलिसी जब हमारा इम्प्लीमेंटेशन होगा उसमें ये +2 ये लेवल्स जो है वो उसमें स्लाइड चेंज होगा. इट विल गो लाइक दिस 5+3+3+4 और उसके आगे रिसर्च. राइट, दैट इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और बहुत अच्छा जो उसमें सुझाव, बहुत बड़ा बदलाव जो आएगा वो होगा स्ट्रीम्स. यानी अभी आपको मालूम है 10वीं के बाद हम झट से क्वेश्चन करते हैं. कोई बच्चा अपने घर आता है, कॉलेज में कोई आता है, अरे क्या कर रहे हो, वो बोला 11वीं में है, हम जल्दी से पूछते हैं अच्छा क्या कर रहे हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस. इसके आगे ऐसे स्ट्रीम वाइज डिवीजन नहीं होगा. देयर विल बी अ मल्टीपल चॉइस. ये इस पॉलिसी का ये इंपॉर्टेंट फीचर है कि इट विल बी मल्टीपल स्ट्रीम ओरिएंटेड. there will be a lot of choice. There will be no demarcation as such. अभी जो वाटर टाइट कंपार्टमेंट चल रहा है कि साइंस लिया है तो वो बच्चे ने सिर्फ यही पढ़ना है, उसका फिर आर्ट्स के किसी भी विषय से संबंध नहीं है. वो बच्चा आर्ट्स पढ़ रहा है तो उसको वो बच्चा इवन इफ ही इज गुड इन स्टैटिस्टिक्स, इवन इफ ही इज गुड इन मैथमेटिक्स, लेकिन एक बार उसने आर्ट्स ले लिया है तो उसका और मैथमेटिक्स का कोई संबंध नहीं. लेकिन ऐसा नहीं होगा. नेक्स्ट प्लीज. ऑलराइट, नेक्स्ट विल बी, अभी ये 5+3+3+4 को हम और अच्छे से और सरलता से समझ लेंगे ये क्या है. राइट, नाउ 5 मीन्स जब बच्चा 5 साल का होता है. राइट, सॉरी 5 जब बच्चा 3 साल का होता है उसको से पहले स्कूल में, जिसे हम आता ही माहिती है आपल्याला प्ले स्कूल बोलते हैं. बच्चा 3 साल की उम्र से लेके आगे वो प्ले स्कूल में होगा.
फिर उसके बाद 2 साल डिफरेंस बोलना चाहता हूं यहाँ वन थिंग आई लाइक टू मेक क्लियर कि देयर इज नो मच ऑफ अ डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस होगा वो किस चीज में, पैटर्न में बदलाव आएगा और प्रोसीजर में, मेथोडोलॉजी में। क्योंकि अभी बच्चा जैसे ही जाता है, देखो मैंने तो किंडरगार्टन में भी एग्जाम्स होती है और बड़ी कंपटीशन लगी रहती है। जो माएँ उनको बच्चे को लेने आती है ना, वो बोलती है वाह बच्चे ने इतना अच्छा ए निकाला, पूरा कर्स्यू में इतना ब्यूटीफुली निकाला, आर्टिस्टिकली निकाला। उसके बाजू में खड़ी होती दूसरी माँ कि जिसके बच्चे ने अभी पेंसिल भी उसको अच्छी तरह से पकड़े नहीं जाती है, अभी पेंसिल बैलेंसिंग नहीं हुआ है, एंड देन शी फील्स बैड कि अरे मेरे बच्चे को तो अभी तक भी नहीं आता या इस तरह से नहीं आता है। सो सी, कहीं डिस्करेजमेंट जो होता है वो पेरेंटल लेवल से शुरू होता है, जो आगे चल के बच्चों में ट्रांसफर होता है। अब ये चीज ही नहीं होगी, ऑलराइट, क्योंकि देयर विल बी नो एग्जामिनेशन टिल सेकेंड स्टैंडर्ड। ऑलराइट, बच्चा जब प्ले स्कूल में जाएगा वहां सारी उसको लाइफ स्किल्स बताई जाएंगी। अभी लाइफ स्किल यानी क्या? लाइफ स्किल, यू नो व्हाट आर द बेसिक, क्या बोलते हैं, जीवन के सिर्फ 3 निशान, रोटी, कपड़ा और मकान। अभी विज्ञान भी आ चुका है, उसमें विज्ञान में भी तो अभी IT है। बस उसी तरह रोटी, कपड़ा, मकान के जैसे बेसिक नीड्स है, उसी तरह जीवन जीने के लिए जो बेसिक नीड्स होती है हमारी, उसमें फिर पर्सनल हाइजीन यानी टूथ ब्रश कैसे, इससे उनको बच्चों को, क्योंकि अभी तो कोरोना पीरियड में आपने यदि आप सर्वेस देखते होंगे, मैंने कहीं पेपर में पढ़ा था कि चलो कुछ, एक मेरे डॉक्टर फ्रेंड ने कहा 1-2-3 महीने के बाद कोरोना के चलते कि बाकी कुछ भी हो, कोरोना का हालचाल हो रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एक बहुत अच्छा हुआ है कि हमारे सारे लोग अभी हैंड वॉश की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमेशा बीमार पड़ते हैं, बहुत कम लोग खाने जा रहे हैं अभी। एक तो डर तो है ही कोरोना का, लेकिन दूसरा बहुत कम परसेंटेज है लोगों का टू फॉल सिक, आजारी पडायचा जो रेशो होता तो कमी झालेला आहे। त्याचं कारण बेसिक हाइजीन इज नोइंगली अननोइंगली, कोरोना के डर से क्यों ना हो, लेकिन दिस इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, दिस इज कॉल्ड एज बेसिक स्किल्स। तो ये सारी बेसिक स्किल्स बिल्कुल बचपन में ही, एक एग्जाम्पल जरूर देना चाहूंगी मैं, मेरे खुद के साथ हुआ ये हादसा है। स्कूल में पढ़ते हुए मैंने के पेज 7वीं 8वीं में पढ़ा था कि जब घर में आग लगती है, किसी को आग लगती है तो क्या करना चाहिए, गिव साइंटिफिक रीजन, क्या करना चाहिए, तो उसको कंबल में ओढ़ना चाहिए। मेरे सामने मेरे ही पार्ट ऑफ माय लाइफ वाज गेटिंग बर्न्ड और मुझे नहीं सूझ रहा था उसके ऊपर कंबल ओढ़े या पानी डाले या कुछ करे। तो ये सब हादसे के बाद मेरी एक कजिन है, उसकी बेटी से मैं कजिन की हमेशा बात करती हूँ, उसके बेटी बाद 1-2-3 साल के बाद वो जब बेटी अच्छी बोलने लगी है, काफी आई डेलिबरेटली इंटरैक्ट विद सच किड्स, क्योंकि उनकी बातों से पता चलता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, उनकी लाइफ, उनकी जो एजुकेशन प्रोसेस है बाहर की, दैट कजिन लिव्स आउटसाइड स्विट्जरलैंड में होती है। वन फाइन मॉर्निंग दैट लिटिल गर्ल, वो मेरे कजिन को पूछ रही है कि मासी ना क्यों ध्यान में नहीं आया कि उसने कंबल में लपेटना चाहिए या तो पानी डालना चाहिए। मेरे क्रेश में, क्रेश यानी जहां बच्चों को रखा पाळण्या घरामध्ये, आता हा एक्सपेरिमेंट केला गेला। 1 डॉल, यू नो, दे पुट पेट्रोल ऑन इट और उसको बर्न किया गया, एंड देन दिस एक्सपेरिमेंट वाज एक्चुअली डन। द डिफरेंस जरूरी है, जलने के क्या होता है। अब ये जब वो फोटोकॉपी उसके दिमाग में छा जाती है, सी द डिफरेंस इन लर्निंग प्रोसेस। पढ़ी चीजें, कही चीजें, सुनी चीजें और एक्सपेरिमेंट की हुई चीजें, एंड यही ध्यान में रखते हुए दिस इज द डिफरेंस, दिस इज व्हाट वी आर, दिस आर द इंप्रूवमेंट्स बीइंग मेड। कि अगदी बहुत प्राइमरी लेवल पे, क्योंकि आप सभी को मालूम है साइकोलॉजी हैज प्रूव्ड दिस, हम बच्चे बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम हमेशा बात करते समय, सिखाते समय बोलते हैं अरे उसको क्या समझता, ऐसे नहीं होता है। बच्चों का ग्रास्पिंग बहुत ज्यादा होता है, बच्चे बहुत अच्छे समझ लेते हैं। आई एम श्योर वो जब लड़की ने जब पूछा कि मेरे क्रेश में, मेरे पालना घर में ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ, उनके पालना घर में दे हैव अ स्मॉल किचन,
सब क्या बोलते हैं, बनावटी सब चीजें बनी है। एक्चुअली वर्क ऑन दैट एंड नेचुरली सेल्फ रिलायंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। और यही ध्यान में रखते हुए ये 3 साल प्ले स्कूल में सिंपली बच्चों को जिंदगी के लिए, जीने के लिए, इजी करने के लिए जो जरूरी है वो सारी चीजें बताई जाएंगी। फिर आता है स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, अगेन वहां एग्जाम नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एज फाउंडेशन स्टेज। ये जो पहली स्टेज है वो फाउंडेशन स्टेज है। दूसरी स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज। ये प्रिपरेटरी स्टेज है क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक के। यहाँ एग्जाम होनी है, बट टेंशन वाली बात नहीं है, एग्जाम होगी लेकिन थोड़े फार याची इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है एक्टिविटीज, स्टडी बेस्ड ऑन एक्टिविटीज। इंपॉर्टेंस दिया जाए। लैंग्वेज इज अनदर पार्ट, और खास तौर पे तो क्लास 3 to 5 जब चलेगा तो इंपॉर्टेंस विल बी गिवन टू द मदर टंग। आई नो अभी भी बड़ा डिबेट चल रहा है किसके ऊपर, ये पॉलिसी के तहत देयर इज एन ओपन डिबेट गोइंग कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, मदर टंग। ये तो पॉलिसी का कहना है। आई मीन वेदर टू कंटिन्यू विथ इंग्लिश एजुकेशन और नॉट, दैट इज स्टिल डिबेटेबल। लेकिन इस स्टेज में क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक खास ध्यान रखा जाएगा कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेजेस सीखे। माय डियर स्टूडेंट्स, टेल यू दैट इज द राइट टाइम टू अक्वायर लैंग्वेजेस। बच्चा सहजता से, कोई विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट्स, उसको कोई क्लास में देखो ना, हमारे बच्चे जब छोटे थे, आप लोग जब छोटे थे, आपके बाजू में एक आधा डिसाइडर कोई फैमिली आती है नेबर करके, ऑलराइट, आप थोड़े आप में दोस्ती होती है, पहले तो थोड़ा डिस्टेंस होता है, फिर धीरे धीरे वो बच्चा आपके घर में आता है, फिर आप उस बच्चे के घर में कभी गए होंगे, फिर वो बच्चे ने कुछ खाने के लिए दिया होगा, वो चीज जब आप खाने लगे तो उसमें नमक कम था, आपने उस बच्चे को वो बोला अरे इस एचात मीठ नहीं है, इसमें मीठ नहीं है, फिर वो बच्चा ने खुद चख के देखा होगा और तब उसको ध्यान में आया होगा कि अरे मम्मी ने डोसा में नमक ही नहीं डाला, वो चिल्ला बोलेगा मम्मी इसमें नमक नहीं है। झट से आपने एक आपका वोकैबुलरी में एक वर्ड ऐड हो गया है कि मीठ जो मराठी में है उसको हिंदी में नमक कहते हैं। आप जब यू आर एक्सपोज टू इंग्लिश स्पीकिंग फैमिली, तब उसको जाके पता चलता है अरे मीठ यानी नमक और वो ही कहलाता है सॉल्ट। तो दिस इज द स्टेज टू एक्वायर लैंग्वेजेस। और ध्यान दिया जाएगा न्यू पॉलिसी में, बच्चा तीसरी से लेके जब 5वीं तक एजुकेशन ले रहा है, इन 3 सालों में लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर खास प्रैक्टिस किए जाएगा, खास ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेज आती है जिसे कहा गया है मिडिल स्टेज। अगेन दिस इज ऑफ 3 years। ये भी थर्ड स्टेज है, वो 3 साल की है, जिसमें क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक उसको एजुकेशन दिया जाएगा। इसमें स्लाइटली हायर स्टेज पे जाएंगे। पहले स्टेज में जो था उसमें इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू मदर टंग, नाउ इंपॉर्टेंस विल बी गिवन टू इंडियन लैंग्वेज, पर्टिकुलरली ऐसी लैंग्वेजेस जो धीरे धीरे कालबाह्य पीछे छूट रही है, लेकिन देयर इज अ ग्रेट एसेंस इन देम। फॉर एग्जांपल, अ लैंग्वेज लाइक संस्कृत, अ लैंग्वेज लाइक पाली, प्राकृत और भोजपुरी, रीजनल लैंग्वेजेस। यस, कहीं तो रीजनल लैंग्वेजेस भी अभी पीछे छूट चली थी, उनके ऊपर। सो लैंग्वेज वाइज पहले इसमें इंपॉर्टेंस विल बी गिवन टू द मदर टंग। सेकेंड स्टेज में, मिडिल स्टेज में जब बच्चा आता है तो इंपॉर्टेंस विल बी गिवन टू द अदर लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस माइंड यू। और फिर क्लास 6 to 8 तक इंपॉर्टेंस विल बी गिवन टू कंप्यूटर। यस, कंप्यूटर एजुकेशन विल बी इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि हमने प्रिंसिपल्स में देखा गया था कि टेक्नोलॉजी इज द एसेंस ऑफ दिस पॉलिसी। और एक बदलाव आया है, मैथ, साइंस, आर्ट्स फ्रीली ये सारी चीजें, बेसिक चीजें बताई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी, लेकिन उसके साथ ही और एक चीज पर ध्यान दिया जाएगा कि इन्हीं दिनों जब बच्चा 6 स्टैंडर्ड से 8 स्टैंडर्ड चल रहा है तो उसको किसी एक स्किल में खुद को डेवलप करना होगा। आपको मालूम है, हम थोड़ा इंडियन इकोनॉमी का जब स्टडी करते हैं, मुझे याद है जब मैं एज अ स्टूडेंट इंडियन इकोनॉमी पढ़ रही थी, मेरी शुरुआत हुई थी बार्टर सिस्टम से। आई होप यू नो, डू यू अंडरस्टैंड सिस्टम? बार्टर सिस्टम, जिस मराठी में कहते हैं 12 बंदूकेदार।
बोले तो पूर्वी पहले छोटे छोटे कस्बे गांव हुआ करते थे, अभी उन्हीं गांव में वो सारे लोग मौजूद हुआ करते थे कि जो लोग डेली नीड्स के सारी चीजें अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाते थे। 12 बलूतेदार सिस्टम, और वहां एक्सचेंज चलता था, वो एक्सचेंज होता था, देयर वाज नो करेंसी एट दैट टाइम, पैसों के माध्यम से नहीं होता था। मैं यदि कोई किसान है तो वो लोगों को इतना अनाज देगा, उसके अगेंस्ट कोई नाई अपना काम करेगा, कोई सुतार कारपेंटर अपना काम करेगा, उसके लिए कोई ये इस तरह का एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज चलता था। एग्जैक्टली मैं कहूं कहीं तो वी आर गोइंग बैक टू दैट ट्रेडिशन कि स्किल डेवलप होना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत ही पीछे हो गई है। ऑलराइट, अभी उनको तो सब्सिडीज भी दी जा रही है, फिर भी दे आर मराठी हमेशा न्यूजपेपर में आता है की स्मॉल स्केल म्हणजे छोट्या लघु उद्योगांना घर लागली, घर म्हणजे ते शेवटच्या स्टेजला येऊन पोहोचलंय। मला असं वाटतं ह्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये ही जी घर लागलेली आहे, लास्ट स्टेज पे आई है, उनको क्या बोलते हैं रेन्यूवेट करने को, रीजेन्युएट करने का काम ये पॉलिसी करने वाली है। और इसी के लिए बचपन से ही बच्चों को ये सारी वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा। देन इट विल बी स्यूइंग, कुकिंग, गार्डनिंग, क्राफ्ट, मेटल वर्क, आर्टिस्ट्री, इलेक्ट्रिक वर्क, इलेक्ट्रिशियन का काम होगा, carving का काम होगा, पेंटिंग एंड ऑल दिस। सो समवेयर ऑल आवर आर्ट्स विल ऑल्सो बी इवेल्युएटेड एंड एडजस्ड। तो ये हो गया मिडिल स्टेज, यहाँ सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन होगा, लेकिन एक चीज पर ज्यादा गौर किया जाएगा, वो यानी टेक्निकल एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन, उसके साथ ही वोकेशनल एजुकेशन। देन कम्स द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज सेकेंडरी स्टेज। फ्रॉम मिडिल स्टेज टू वी विल मूव ऑन टू द सेकेंडरी स्टेज, और जो होगा क्लास 9 टू क्लास 12। बाप रे, क्लास 9 टू क्लास 12 एकदम जो भी है घर में है। अभी भी कोई बच्चा 12वीं वाला है, अभी सीईटी एग्जाम आने वाली है, तो घर में एकदम टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ऐसे आगे चल के भविष्य में ऐसा नहीं होने वाला है। तो इस स्टेज पे क्या बदलाव है? सबसे पहले तो अभी हमने शुरू की मदर टंग, फिर बाद में इंडियन लैंग्वेजेस यानी रीजनल लैंग्वेजेस। अभी इस स्टेज पर फोकस विल बी ऑन फॉरेन लैंग्वेजेस। मैं इस चीज पर, बीइंग अ टीचर ऑफ लैंग्वेज, आई वुड रियली लाइक टू एड माय ओन ओपिनियन विच इज बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस। ओके, फॉरेन लैंग्वेजेस जिसमें इंग्लिश इज डेफिनेटली अ फॉरेन लैंग्वेज, इवन दो इट इज एन इंटरनेशनल एंड ऑलमोस्ट सेकेंड लैंग्वेज फॉर इंडिया, ये होने वाला है। फिर नो स्ट्रीम्स, इसमें 11वीं आर्ट्स, 12वीं ये साइंस वगैरह कोई स्ट्रीम्स नहीं रहेगा। देन देयर विल बी अ चॉइस ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट्स, और सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा कि बच्चा खुद सोचे, क्रिटिकल थिंकिंग। आई फील वेरी बैड, आज 12वीं पास या 12वीं के स्टेज के बच्चों को यदि कोई मिलता है, हमारे फ्रेंड का बच्चा है, आई एम श्योर दिस इज अ वेरी कॉमन एक्सपीरियंस शेयर्ड बाय ऑल। बच्चे को पूछा जाए काय रे तुला काय करायचं, इज नॉट आन्सर मला काय करायचं। बच्चा बोलता है, पप्पा म्हणतात असं, फादर सेज ये करो, फ्रेंड बोलता है वो करो। कई बार बच्चे को पूछ क्यों बीएससी क्यों ले रहे, नहीं दीदी ने भी यहीं से बीएससी किया है, दीदी का एक्सपीरियंस है तो इसलिए बीएससी। एंड व्हाट I have no value because I am not given the chance to develop my own choice. I am never given a voice, free voice कि नहीं भाई मुझे ये पसंद नहीं, मुझे ये करना पसंद है। Exactly, ये दिनों में आने वाले 10 साल का जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी के तहत ये जो विजन है, उस विजन में बच्चा शुड बी एबल टू टेक हिज ओन डिसीजन। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद का इवैल्यूएशन उसने करना है, होना है। अभी मैंने बोला था कि फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर जब मैं बोल रही थी तो यस आई रियलाइज कि हमारे कॉलेज में, इतना बड़ा कॉलेज है, इतनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज होने के बावजूद भी आई फील वेरी प्राउड टू मेंशन दैट हमारे कॉलेज में इतनी सारी MNCs यानी मल्टीनेशनल कंपनीज जो कैंपस के लिए आती है, बच्चों को इंटरव्यू के लिए आती है। हर समय इंटरव्यू के बाद एक ही ओपिनियन होता है कि आपके बच्चे नॉलेज वाइज वेरी गुड, डिग्री वाइज दे आर वेरी गुड, मार्क्स वाइज दे आर वेरी गुड, बट दे फेल इन एक्सप्रेशन, दे डोंट हैव लैंग्वेज, दे कैन नॉट एक्सप्रेस देम। माइंड यू, ये चीज
ये भी चीज ऊपर लेवल तक के ध्यान में आई है, और इसीलिए नाउ ये 9 to 12 क्लास तक इंपॉर्टेंस विल, सिर्फ जी सिर्फ NET नीट या तो CET ना करते हुए इन सारी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा एट दिस लेवल। नेक्स्ट प्लीज। मैं सीक्रेट बता रहा हूँ मेरे पर्सनल। नेक्स्ट लेवल इज ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, जो अभी 10+2+3 हुआ करता था, नाउ इट विल बी 4 years। ऑलराइट, 4 years। उसका डिवीजन कैसा है होगा वो आपके सामने है। फर्स्ट ईयर, नाउ मेन डिफरेंस क्या है? आज तक बच्चा सपोज BA Part 1 के लिए, suppose the student belongs to a very, क्या बोलते हैं, economically backward class, there are many mishaps and unfortunate things to happen, और घर में ऐसी दिक्कत आ गई, बच्चा cannot continue, somebody is talking, बच्चा continue his education, वो सेकंड ईयर में भी आ जाता है, कसा बसा करून पैसे जमा करून तो सेकंड इयरला पण येतो, ऍडमिशन घेतो, but he cannot attend the class. Naturally, he is not able to attend the class. He is not able to manage with the practicals. और बड़े दिक्कत से वो सेकेंड ईयर की एडमिशन दे पाता है या नहीं दे पाता है, और फिर बाद में तो वो कॉलेज ही नहीं आता। मतलब हुआ कि उसने 1 साल या 2 साल कॉलेज में अपने लाइफ के जो गोल्डन ईयर्स बोलते हैं, वो गोल्डन ईयर्स के 2 साल कॉलेज में स्पेंड करने के बावजूद उसके हाथ में कुछ डिग्री नहीं है, अनलेस ही फिनिशेस हिज 3rd ईयर, अनलेस ही हायर्स 3 साल के बाद ही उसको डिग्री मिलने वाली है। नाउ इफ यू नोट, ये स्क्रीन पर जो दिखाया गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड दिस, कि ये फर्स्ट ईयर जो होगा डिग्री कोर्स होगा, ग्रेजुएशन का वो कोर्स होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर द स्टूडेंट विल गेट अ सर्टिफिकेट, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर द स्टूडेंट विल गेट अ डिप्लोमा। यानी कुछ बिकॉज ऑफ द अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस उसका आगे का पढ़ना बंद भी हो जाए तो उसके पास क्या होगा, आइदर अ सर्टिफिकेट होगा और अ डिप्लोमा होगा, जिसके मदद से कैन ऑफ कोर्स किसी नौकरी के लिए या कुछ कर सकता है। फिर आता है 3rd ईयर डिग्री का। कई बच्चे अभी तो बहुत ट्रेंड चल रहा है, किसी भी बच्चे को बोलो क्या फ्यूचर प्लान है, हाँ वो क्या करना है, उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी है, IAS बनना है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ऑलराइट, वो बहुत अच्छी बात है, टू हैव ड्रीम्स, टू हैव विजन, लो एम इज अ क्राइम इंग्लिश में कहा जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। कई बच्चे फर्स्ट ईयर में बैठते हैं मेरे क्लास में, अगेन आई एम गिविंग माय ओन एक्सपीरियंस, बच्चा शुरू में 8-10 दिन आता है, फिर बाहर का क्लास लगा लेता है, उसका क्लास और मेरा क्लास एक ही समय आता है, बाहर का क्लास नहीं, वो इंग्लिश का क्लास नहीं है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोचिंग क्लास है। फिर बच्चा 2-3 महीने के बाद आता है, जब मैं पूछती हूँ क्यों भाई आप नहीं दिखते हो, नाही मॅडम हे तर करतोच आहे, पण मी कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स मला द्यायची आहे म्हणून मी ते क्लास लावले आहेत, आणि नेमके ते क्लास तुमच्या क्लासच्या सोबत मॅच होत नाही आणि म्हणून त्या क्लासला जातो। बघा कुठेतरी वेळ आली आहे ह्या सगळ्या गोष्टींकडे जर प्रॅक्टिकली बघायची। काय होत आहे माहितीये का, मुलं इकडे पण येत नाहीत आणि तिकडे पण कुछ हासिल नहीं आ रहा है, एट द एंड ऑफ द डे उसकी मुट्ठी खाली है। ऐसा अभी नहीं होगा, 3 इयर्स के बाद उसको डिग्री मिलेगी, वो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा टू अपीयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब यहाँ 2 चॉइस है, जो बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है वो 3 साल के बाद उधर डाइवर्ट हो जाएंगे, जो बच्चों को पूरी डिग्री करनी है उनको 4था साल जो रिसर्च का कहा जाएगा, जिसके तहत वो पीजी के लिए एलिजिबल होगा। इस तरह से ग्रेजुएशन डिग्री ये 4 इयर्स डिग्री होने वाली है। आई थिंक दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम। Alright, and ये मेरे if you ask me as a teacher, I will definitely wholeheartedly I will welcome this pattern, क्योंकि यहाँ जो लेफ्ट आउट स्टूडेंट्स है, जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स है, वो जो अभी तक दिस इज हैपनिंग इवन एट स्कूल लेवल। लेट मी टेल यू, बच्चा 8वीं तक पढ़ रहा है, आप देखो चाइल्ड लेबर, मेजॉरिटी ऑफ चाइल्ड लेबर का जो प्रॉब्लम है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहा है, घर की कंडीशन स्कूल जाने के लिए नहीं है, बहुत इच्छा है, कई बार तो बहुत स्पार्क भी है, बहुत इंटेलिजेंट भी है, एवरीथिंग इज गोइंग बेस्ट, एबल टू डू इट। सो
कहीं तो ये जो ड्रॉप आउट का जो प्रॉब्लम था इस पैटर्न से डेफिनेटली इट विल बी ओवरकम. दिस इज हाउ आई लुक एट. और आगे जाके और एक आप स्क्रीन पर देख सकते हो री एंट्री. यदि बच्चा 2 साल के बाद कुछ कारणवश पढ़ाई छोड़ रहा है, 3 साल उसने काम किया, इकोनॉमिकली स्टेबल हो गया, अच्छी कंडीशन हो गई, नाउ ही वांट्स टू फिनिश हिज डिग्री, या कैन गो बैक, he can do his 4th year, he can become a graduate. डिग्री मिल जाती है उसको और उसके लिए आगे के सारे रास्ते खुले हैं. ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबिलिटी. ओपन एंट्री, एग्जिट एंड एंट्री, जो कि अब तक नहीं था. अप टिल नाउ इट वाज ऑल क्लोज बाउंडेड. Alright, then 4th year is research. जो बच्चा पूरे 4 साल करता है उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन 1 ही साल का होगा. यहाँ स्लाइड में थोड़ा सा गलत है, ये 1.5 यानी आधा मत पढ़िएगा. इसका अर्थ है 1 और 2 स्लैश है, वो 1 या 2. सो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स 1 साल उनके लिए होगा जिस बच्चे ने ये 4 साल किया है, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन विल बी ऑफ 1 ईयर. लेकिन कोई बच्चा अपना क्या बोलते हैं किस्मत आजमाने के लिए 3 साल के बाद कहीं बाहर जाता है, कुछ क्या बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए वो ट्राई कर रहा है, एंड इट्स अ मैटर ऑफ चांस. नहीं बनाना ठीक है, डजंट मैटर. हर समय अपनी गाड़ी दौड़ेगा नेसेसरी, नहीं दौड़ेगा वापस आ सकता है, और ऐसे समय ही कैन डू हिज पोस्ट ग्रेजुएशन विच विल बी ऑफ 2 years. लेट मी टेल यू, अल्टीमेटली पैटर्न इज द सेम, 10 + 2 + 3 + 2, लेकिन ये 3 + 2 में स्लाइड डिवीजन है, वो इस तरह की है. यहाँ एक मेजर चेंज आपको नोट करने को मिलेगा, और वो यानी एमफिल की डिग्री इसके बाद आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी देयर विल बी नो एमफिल यानी मास्टर ऑफ फिलोसॉफी, और पीएचडी दैट इज डॉक्टरल जो डिग्री है वो अभी भी 4 साल की है और बाद में भी 4 साल की होने वाली है. I'll sum up. Okay. Now, the next slide. I hope you understood clearly. I want everyone to understand this because you have to explain this to others. Remember, play special. Yes, ma'am. Yes, ma'am. NCC cadets. NCC cadets, you are the Yes, ma'am. please, yeah, try and understand this. All right. So next slide is. तो उसमें क्या क्या बदल आने वाला है. मैं आई हैव बीन इंसिस्टिंग यू कि बहुत अच्छी चीज होने वाली है कि आज तक जो 3% जीडीपी इस पर चला था वो 4 to 6% बढ़ेगा. यानी शिक्षा पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शिक्षा मंत्रालय ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करेगी. पायाभूत जिसे इंफ्रास्ट्रक्चरल बेसिक जो सुविधाएं हैं वो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि अभी तो टेक्नोलॉजी के चलते तो हमको ये बेसिक टेक्नोलॉजी हैज बिकम अ बेसिक थिंग नाउ, तो हमको वी हैव टू बिकम स्ट्रांग इन दैट रिस्पेक्ट. दूसरा पॉइंट यहाँ आपको दिख रहा है स्कूल फीस. अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी देयर विल बी अ टोटल रेगुलेशन और कंट्रोल ओवर द स्कूल फीस. हाँ, ऑफ कोर्स देयर आर गोइंग टू बी गवर्नमेंट स्कूल्स एज वेल एज अनएडेड स्कूल्स, लेकिन एडेड एज वेल एज अनएडेड स्कूल पर रेगुलेशन, लेकिन जो क्या बोलते हैं मॉनिटरिंग जो गवर्नमेंट की होने वाली है. तीसरा इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा सुझाव इस पॉलिसी से निकल आया है, और वो यानी वोकेशनल. इट इज गोइंग टू बी मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड. इट विल बी बेस्ड ऑन इंटर्नशिप्स. देयर विल बी अ डायरेक्ट एक्सपोजर, बहुत ज्यादा स्कोप जाएगा एक्सपोजर टू इंडस्ट्री. वैसे तो अभी भी हमारे इंडस्ट्री टूर चलते हैं ना. कौन कौन कहाँ जाता है इंडस्ट्रियल टूर के लिए? चिखलदरा भी हो आते हैं, ऊटी भी हो आते हैं लोग इंडस्ट्रियल टूर के अंदर. लेकिन ऐसा इंडस्ट्रियल टूर इज नॉट एक्सपेक्टेड. ऐसा अभिप्रेत नहीं है इंडस्ट्रियल टूर, और वो ऐसा एक दिन का 2 दिन का भी नहीं रहने वाला है. वो क्यों नहीं रहने वाला है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी बिगैन इन दिस रिस्पेक्ट. अभी ये NSQF की ये वोकेशनल एजुकेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है. वी आर ऑलरेडी इन प्रोसेस. लेट मी टेल यू, अपने कॉलेज में ही वोकेशनल के 3 कोर्सेस है. एक है कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी, एक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोर्स, और एक अभी हमको इस साल मिला है बीवो डिग्री कोर्स इन एग्रीकल्चर. रिमेंबर, ऐसे ही सरकार ने बहुत
से बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज ओपन किए हैं। मेरा अनुरोध होगा बच्चों से जिनके पास, दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस ठीक है, लेकिन जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटीज है वे जरूर ये सारी चीजों को जान ले, समझ ले, क्योंकि योर फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन ऑल दिस थिंग्स नाउ। सो वोकेशनलाइजेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट गुड थिंग टू हैपन। उसके बाद बच्चे का रिजल्ट कैसे होगा, वेरी इंटरेस्टिंग। आज आपका रिजल्ट कैसे होता है, आप लिखते हो, एनुअल एग्जाम होती है, अभी तो खैर हर जगह सेमेस्टर 3, 4, 5, 6 साल से, लेकिन पहले क्या हुआ था, होता था एनुअल एग्जाम चलती थी, यू आर असेस्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, और पूरा का पूरा रिटर्न एग्जाम होती थी। और उन दिनों देखो सारा साल भर बहुत पढ़े बहुत मगअप किए, लेकिन उन 3 घंटों में कुछ भी हो सकता है ना, आपको भी मालूम है क्या क्या होता है, राइट? तो कुछ भी हो सकता है, तो वो तो फेयर जजमेंट नहीं होगा। फिर बच्चे आते हैं ना एडमिशन के समय, मैडम सच में मेरा अब तक का परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन जेन्युइन भी केसेस होती है, यू रियली फॉल सिक, यू कैन हैव एनी जेन्युइन ट्रबल, ओके? तो ऐसा ना होते हुए एक और अच्छा एक्सपेरिमेंट किया गया है, और वो यानी योर रिजल्ट विल बी सेल्फ असेस्ड एंड पीयर असेस्ड। अब सेल्फ असेस्ड देखो, यहां 3 चीजें यू कैन सी ऑन द स्लाइड। नंबर 1 है मार्क्स के तहत, फिर सेल्फ असेस्ड यानी आपको खुद को इवैल्यूएट करना होगा। मेरी भी अभी आंखें खुली। अभी मेरी नीस जो जर्मनी पढ़ती है, उसको सेमिनार में पूछा गया टीचर से कि तुम्हारा ये अच्छा रहा, असाइनमेंट अच्छी रही, आपको क्या लगता है आपको कितने मार्क्स देने चाहिए? शी गॉट कंफ्यूज्ड, क्योंकि अभी तक तो 3 इयर्स उन्होंने पुणे में किए, और फिर वहां जाके उनको पूछा जा रहा है कि आपका असेसमेंट, आपका ये जो है सेमिनार का, तो आपको कितने मार्क्स दे। अब नेचुरली ऑल ऑफ अ सडन यदि टीचर आपको पूछते हैं तो आपको भी दुविधा में आएंगे, यदि कम बोलूं तो कम मार्क डाल देंगे, यदि ज्यादा बोलूं भी प्रॉब्लम, कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे तो आई विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई। नाउ यही ध्यान में रखते हुए अभी बच्चे को सेल्फ असेसमेंट आना चाहिए, इसीलिए तो हो रहा है, 12वीं भी हो रहा है। तुमको क्या करना है अभी डिसाइड नहीं किया है, ग्रॅज्युएशन नंतर काय करणार बघू ना, अजून ग्रॅज्युएशन तो होऊ देत। कहीं सेल्फ इवैल्यूएशन में हम लोग कम गिर रहे हैं, और हेंस रिजल्ट का जो असेसमेंट है वो कौन कौन से चीज पर बेस्ड होगा। नंबर 1 इज मार्क्स, नंबर 2 इज सेल्फ असेसमेंट, नंबर 3 इज फ्रेंड्स। अब आपको लग रहा है कि मेरा रिजल्ट के बारे में फ्रेंड्स क्या बोले, जरूर बोलेंगे, और इसके लिए आपको आपके फ्रेंड के साथ अच्छा व्यवहार होना जरूरी है। देखो ये जो नीति बनाई है, ये लोगों ने किस दूर तक उनकी सोच देखिए, उनका विजन कितना बड़ा, क्योंकि इन 2-3 दशकों में हमारे ये ध्यान में आया है कि वैसे तो कहा गया है कि एजुकेशन कैसी प्रोसेस है, इट शुड बी ओपन माइंडेड, लेकिन कहीं तो गांधी जी को मुझे और एक बार याद करना पड़ेगा कि गांधी जी ने कहीं वो उन्होंने अपने इसमें लिख के रखा है कि मैन जो जितना पढ़ता है उतना और ज्यादा संकुचित होता जा रहा है। यस, दैट्स अ फैक्ट। क्योंकि देखो ना, मैं पढ़ती हूँ, मेरी डिग्री, उस डिग्री के बदौर मैं एक अच्छी नौकरी के बदौर उस जो भी सैलरी उसकी मुझे मिल रही है, उसकी और बेटर लाइफ, बेटर सुविधा, मुझे दूसरी तरफ देखने के लिए टाइम ही नहीं है। और ये जो स्कीम हो गया, ये जो पैटर्न हो गया है, उसको ब्रेक करने के लिए फ्रेंडशिप आपको बढ़ानी होगी, क्योंकि आपको एक आधे असाइनमेंट में कितने मार्क डालने हैं टीचर आपके फ्रेंड को पूछना है। सो इसको बोलते हैं को एग्जिस्टेंस, सहचार, सद्भावना, राइट? सभी मिलके, सदाचार, मिलके रहने का ये जो प्रिंसिपल है, ये जो तत्व है, इसको भी बढ़ावा देना है हमको। मूल यानी बहुत बेसिक लेवल से हमको जब बढ़ाएंगे तो हम ये वैल्यूज प्रैक्टिस में लाएंगे। तो इस तरह से आपका ये होने वाला है, असेसमेंट होने वाला है, इसको कहते हैं सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट। वेरी इंटरेस्टिंग, ग्रेट चेंज। आगे का पॉइंट है एजुकेशन पॉलिसी और माला बोला। नेक्स्ट इज डॉक्टर बंसोड़ इज फॉरेन यूनिवर्सिटी। यस, आपको मैंने पहले ही बताया था कि 1990 हुआ एंड एवरीथिंग बिकेम ओपन, ऑलराइट? देयर वाज नो ट्रांसपेरेंसी। बाहर के सारे
बिजनेस हाउसेस एज वेल एज एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इंडिया में आने लगे हैं। और कहीं उसका अतिरेक भी हुआ, एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ, लेकिन इसके वजह से नहीं होगा। द गवर्नमेंट विल हैव अ कंप्लीट होल्ड ऑन दैट एंड ओनली टॉप universities can only come to our country. अब ये top 50 universities क्या चीज है? It will be decided as per the ranking, as per the accreditation. आपको मालूम है, आप लोग जिस कॉलेज में पढ़ते हो, हमारा accredited कॉलेज है। अभी UGC ने एक सेपरेट बॉडी बनाई है, NAC, राइट, जो बेंगलुरु है, और उनका काम ही है कि हर कॉलेज को हर साल उसमें सुधारना लाना और उनका असेसमेंट करना और उनका मूल्यांकन करना, ताकि वंस अगेन कंपटीशन के इस दौर में वो टिक पाए। और वो सारी चीजें, वो एक अच्छी इंस्टीट्यूट में है, वो सारे इंस्टीट्यूट्स में हो। दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट। तो नेचुरली इस तरह से फॉरेन यूनिवर्सिटी आने वाली है, आई है, ऑलरेडी आई है, लेकिन हमको ध्यान देना पड़ेगा रैंकिंग की तरफ। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट। Separate departments will be formed for various things. For example, there will be a complete expansion of national scholarship portal. फिर मैंने पहले ही बताया था कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्किंग, ये भी बहुत वाइड होने वाला है, उसका भी एक सेपरेट डिपार्टमेंट रहने वाला है। और भी ज्यादा और एक सेपरेट डिपार्टमेंट जिसके ऊपर अभी बहुत कम पैसा खर्च हो रहा है और ज्यादा ध्यान नहीं बटोरा जा रहा है, और वो है रिसर्च फैसिलिटीज। रिसर्च फैसिलिटीज का भी एक ऑन इट्स ओन अ सेपरेट डिपार्टमेंट इज गोइंग टू बी देयर, विच विल बी अगेन बेस्ड ऑन लोकलच्या गरजा लक्षात घेऊन, लोकलचं सबस्टॅन्शियल पोटेन्शियल लक्षात घेऊन या रिसर्च मध्ये आणखीन काय सुधारणा केल्या जातील आणि काय हे होतील, आणखी हे जे काही रिसर्च वर्क होईल हे कसं बेस्ट राहील, क्वालिटेटिव्ह राहील, हेही ह्या पॉलिसी ध्यान दिया गया इस भी चीज पर। एंड द लास्ट पॉइंट इज टीचर। यस, दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वॉज अनफॉर्च्युनेटली निग्लेक्टेड नाउ टिल नाउ। एक थातूर मातूर आज तर अशी कंडिशन आली आहे, आपण आपल्याच वाय नॉट लेट अस बिगिन फ्रॉम आवर कॉलेज इट सेल्फ, की अगदी नुकताच पोस्ट ग्रॅज्युएशन झालेला मुलगा, वी फाइंड हिम रिझल्ट आते ही विदिन अ मंथ फाउंड इन द टीचिंग MSc क्लासेस। ऑलराइट, सो हे कुठेतरी खरंच अयोग्य आहे, हे त्यांच्या ध्यानात आलंय, उनके ध्यान में आया है, एंड हेंस स्पेशल केयर विल बी टेकन। जो टीचर्स है, यस, उनको प्रॉपर ये देना होगा, ट्रेनिंग देना होगा, उनको ठीक ढंग से, वो फिर स्कूल लेवल हो। हाँ, लेट मी टेल यू, ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है स्कूल लेवल के टीचर्स के ऊपर, क्योंकि वंस अगेन वो जो एज बच्चा स्कूल में जाता है, फॉर्मेटिव एज जिसे कहते हैं, वो एज में बच्चा बहुत सारी चीजें बहुत फास्ट गति से पढ़ता है। अब जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो वो तो मटका, तो हम हमेशा बोलते हैं घड़ा तो पक्का बन गया, अब तो कितना भी पानी डालो तो सब घड़े के बाहर, राइट। तो वो जो फॉर्मेटिव एज है, उन फॉर्मेटिव एज के दिनों में यस वी नीड टू हैव सच वंडरफुल, वेरी वेरी क्या बोलते हैं, क्रिएटिव, इनोवेटिव, वेल ट्रेन्ड टीचर्स। और इस पॉलिसी में ध्यान दिया गया है कि इसी तरह के टीचर्स भी होने चाहिए। तो दिस इज द जनरल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आराखड़ा जिसे बोलते हैं, स्ट्रक्चर, दिस इज गोइंग टू बी द रफ, आई मीन क्या बोलते हैं, ब्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आई होप यू अंडरस्टूड, डियर स्टूडेंट्स, डियर कैडेट्स। नो, यस, या तो या की पॉइंट्स जो है मैंने सारे कवर कर लिए हैं, लेकिन प्लीज चेंज, नेक्स्ट दिखाइए। आपसे जुड़ा हुआ एक पॉइंट यहां मुझे दिख रहा है, पॉइंट नंबर 6, कैन यू सी? या NCC wings in secondary and higher secondary schools under the Ministry of Defense. Special efforts will be made कि ज्यादा से ज्यादा NCC, NSS और ये सारे ये जो यूनिट्स है, ये जो एक्टिविटीज है, इसमें बच्चों का ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो। इट विल बी ओपन विंग्स टू एंड पर्टिकुलरली ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज में ये सारी एक्टिविटीज
पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें, इसका भी ध्यान खास तरीके से दिया जाएगा। तो इससे भी बहुत, आई मीन इट्स अ वेरी बिग एजेंडा माय डियर स्टूडेंट्स। आप यदि देखे तो इट्स वो जो गाइडलाइन है वो अराउंड 70 पेजेस है, जो ब्रॉडली डिवाइड किया गया है स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन के अपने खुद के इंपॉर्टेंट फीचर्स है, हायर एजुकेशन में क्या कैसे होगा। मैंने जो भी आपके साथ अभी शेयर किया है, दिस इज अ वेरी वेरी रफ एंड कर्सरी इंफॉर्मेशन। या इफ time permits, I would rather love to discuss more about all these things in detail, but shall I stop? Okay, so it's time for me to put an end to it. So thank you students and participants for giving patient listening, and I want particularly my colleagues to please go through this agenda, through this policy, because हम देखते हुए अभी आगे की है। Thank you so much. Captain Dr. Rathore madam for giving me this, क्या बोलते हैं, एकदम टाइम पे दिया गया न्योता है और मुझे सारा काम छोड़ के मुझे बहुत सारा होमवर्क करने, जो एक बहुत अच्छी वो उपलब्धि दी, एक बहुत अच्छी जो मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी। I will definitely thank madam for that, and thank you MH4 Maharashtra Girls Battalion all. Thank you very much. Madam explained national education policy in very simple manner. All part जो भी हमारे से रिलेटेड थे आप लोगों से, उन्होंने कोशिश किया है कि इतने कम समय में उसको एक्सप्लेन किया है। होप यू एंजॉयड। उन्होंने बताया ना कि आगे से स्टडी को एंजॉय करना है ना। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने इसको एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। और आई थिंक योर आइडियाज हैव बीन क्लियर। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो हम सुन रहे थे, आपकी बहुत सारी आइडियाज क्लियर हो गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच। ना अब मैं कॉल करती हूँ अमित इंगोले को वोट ऑफ थैंक्स के लिए, लास्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। मैं अमित इंगोले, महाराष्ट्र सिग्नल कंपनी एनसीसी अमरावती यहाँ आभार प्रकट करने के लिए उपस्थित हूँ। मैं माननीय रावसाहेब जी शेखावत साहब, अध्यक्ष विद्या भारती शैक्षणिक मंडल अमरावती, और माननीय मंजिरी जी शेखावत मैडम, समन्वयक विद्या भारती महाविद्यालय अमरावती, इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं माननीय डॉक्टर एडी चौहान सर, सचिव विद्या भारती शैक्षणिक मंडल अमरावती, और हमारे महाविद्यालय के माननीय आचार्य, साथ ही आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय प्राचार्य डॉक्टर PS एनकर मैडम, जिन्होंने हमें नई शिक्षा नीति के बारे में अच्छी तरह से विस्तृत रूप से हमें मार्गदर्शन किया, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। इस कार्यक्रम के आयोजक कैप्टन प्रोफेसर MM राठौर मैम, इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके मार्गदर्शन में एक कार्यक्रम संपन्न। उपाध्याय, कमांडर ऑफिसर 4 महाराष्ट्र गर्ल्स बटालियन NCC अमरावती, MK सिंह, कमांडर ऑफिसर 3 महाराष्ट्र सिग्नल कंपनी अमरावती, और लोभी शर्मा मैडम, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 4 महाराष्ट्र गर्ल बटालियन NCC अमरावती, इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं हमारे महाविद्यालय के सभी अध्यापक, इस कार्यक्रम को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से सहयोग किया है, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद। इसी के साथ आयोजक की और यह कार्यक्रम समाप्त। धन्यवाद। बाप रे, मैंने तो कितना सारा
सिखा रहा था थोड़ा आवाज